Hello children, in last part we studied the physical and chemical properties of metal. Now in this part we are going to understand how metals are obtained from the earth. जमीन में से किस तरह से मेटल को निकाला जाता है एंड दैट एंटायर नॉलेज दैट इज कॉल्ड द मेटोलॉजी, धातु शास्त्र. Okay, so here we will try to understand that what is exact sense of dhatu shastra means the metallurgy. Okay, and how metal is extracted from the nature, because the reason is that whatever metals are there, they never get in the purest form. Okay, they always mixed with the carbon or silica or the sulfur. So how to make it pure, that entire things we will try to understand in this part. So please understand it and try to understand it carefully and listen now. The earth crust is the major source of metal. Seawater also contain some soluble salt such as sodium chloride, magnesium chloride, etc. The element or compounds which occur naturally in the earth crust are known as the minerals. Okay, so whatever we obtained from the earth crust, that all things are known as minerals. Okay, in Hindi and Gujarati it is called the dhatu. At some places, minerals contain a very high percentage of a particular metal, and the metal can be profitably extracted from it. These minerals are called ore. मतलब जो metals होते हैं जब वो अपने raw form में अर्थ में से निकाले जाते हैं, it is mixed with so many other material, that is called the ore. In Hindi and Gujarati it is called the ayas. You have learned about the reactivity series of metal, which we already studied. Having this knowledge, you can easily understand how the metal is extracted from its ore. Some metal are found in the earth crust in the free state, and some are found in their compounds. The metals at the bottom of the activity series are least reactive. You know very well, silver is there and gold is there. All these are less reactive, and that one you get in the फ्री ऑफ स्टेट, मीन्स उनके नगेट्स ही आपको मिल जाते हैं. लेकिन उसके कंपेयर में इफ़ यू सी द सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयन, ओके, दीज आर नॉट गेट इन प्योरेस्ट फॉर्म. वो अपने शुद्ध स्वरूप में नहीं मिलते हैं. दे मिक्सड विथ अदर मटेरियल लाइक सल्फर और कार्बन. ओके, एंड इट इज़ असेंशियल टू यूटिलाइज देम. वी हैव टू मेक इट प्यूरिफाई, एंड दैट प्यूरिफिकेशन is called the metallurgy. Okay, they are often found in a free state. For example, gold, silver, platinum and copper are found in free state. Copper and silver are also found in combined state. Their sulfide means sulfur के साथ उनकी mixing होती है in oxide area. The metals at the top of the activity series like potassium, sodium, calcium, magnesium and aluminium are also reactive, and they are never found in nature as free element. कभी भी वो free state में नहीं मिलते, वो किसी न किसी के साथ compound form में मिलते हैं. The metals in the middle of the activity series crust mainly the oxide, sulfide and carbonate means या तो वो ऑक्सीजन के साथ में केमिकल रिएक्शन करते हुए मिलेंगे, या सल्फर के साथ में कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे, या फिर कार्बोनेट यानी कि चूने के साथ में मिलेंगे. यू विल फाइंड दैट द ओर्स मैनी मेटल्स एंड ऑक्साइड. इट इज बिकॉज ऑक्सीजन इज वेरी रिएक्टिव एलिमेंट एंड वेरी abundant on the earth. Thus, on the basis of reactivity, we can group the metals into the following categories: metal of the low reactive, metal of the medium reactive, and metal of high reactive. Different techniques are used to obtain the metals falling in each category. Several steps are involved in the extraction of the pure metal from ore. A summary of this step is given. Each step is explanation in detail. Here in beside this you can understand. इससे आप यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा. यहाँ पे देखो कौन से मेटल है जिनको इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से प्योरीफाई किया जाता है, किनको रिडक्शन मेथड से, और किसको जो है
और किसी मेथड से प्योरीफाई किया जाता है. इट इज गिवन बिसाइड यू इन फिगर 3.9. नाउ सी हियर ओर्स. अब हम लोग ओर्स की अगर बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स में देखो, आप यहाँ पे देखोगे तो मेटल ऑफ द हाई रिएक्टिविटी, जो बहुत हाईली रिएक्टिव है, इनको इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से यानी इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू इनको पास किया जाता है और इनको प्योरेस्ट फॉर्म में ऑब्टेन किया जाता है. मेटल मीडियम एक्टिविटी में कार्बोनेट और मतलब जिनमें चूना होता है, ओके, एंड सल्फाइड जिनमें सल्फर होता है, उनको क्लेंसिनेशन और रोस्टिंग मेथड से जो है सेपरेट किया जाता है. फिर उनको ऑक्सीडेशन किया जाता है, रिडक्शन किया जाता है और फिर उनको प्योरीफाई किया जाता है. जबकि लो रिएक्टिविटी में सल्फाइड है, उनको रोस्टिंग यानी कि भुना जाता है, फिर उसको जो है रिफाइन प्योरीफाई किया जाता है. And that entire process that is called the enrichment. So ores mined from the earth are usually contaminated. Contaminated मतलब mix होते हैं, बराबर है. contaminated actually यहाँ पे नहीं यूज करना चाहिए वर्ड, ओके. impure form, that is the appropriate word for that, with large amount of impurities such as soil, sand are called the gangue, बराबर. उन सब मिक्सचर को gangue बोलते हैं. the impurities must be removed from the ore prior to the extraction of the metal. अब किसी भी मेटल को अगर आपको प्योर करना है तो सबसे पहले उसमें जो भी impurities है उसको रिमूव करना पड़ता है, ओके. यूज फॉर रिमूविंग द gangues from the ore are based on the difference between the physical and chemical properties of the gangues and ore different सेपरेशंस टेक्निक अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉयड. मतलब अब मेटल की खुद की प्रॉपर्टीज़ क्या है, अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी उसको अलग अलग प्रोसेस में से पास ऑन करना पड़ता है. अब यहाँ पे इन लोगों ने दिया हुआ है एक्सट्रैक्टिंग मेटल लॉ इन अ रिएक्टिविटी सीरीज. मेटल लॉ इन द रिएक्टिव सीरीज आर वेरी unreactive. The oxide of these metal can be reduced in metal in heating alone. मतलब कुछ मेटल को तो सिर्फ गर्म करके ही उसमें से जो है ऑक्सीजन वगैरह रिमूव करके या कार्बन रिमूव करके उनको प्योरीफाई कर लिया जाता है. सम एग्जाम्पल, सिनाबार दैट इज HgS मतलब मर्क्यूरी सल्फाइड, बराबर है. इसमें मर्क्यूरी एंड सल्फर का कॉम्बिनेशन होता है. इज द ऑर ऑफ मर्क्यूरी. व्हेन इट इज हीटेड इन एयर इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू द metallic oxide and mercuric oxide is then reduced in the mercury in further heated. इसका chemical reaction देखो जरा. 2HgS it is in solid form, okay. when it is chemically reacted with oxygen and heated you get here HgO, मर्क्यूरी ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड. अब वापस से जो HgO है इसको हीट करते हैं और ऑक्सीजन इसमें से रिमूव करते हैं तो इट इज अल्टीमेटली कन्वर्ट इनटू लिक्विड फॉर्म. यहाँ पे देखो L दिया हुआ है, HgL. सिमिलरली कॉपर विच इज़ फाउंड एज CuS, कॉपर सल्फेट, क्योंकि सल्फर के साथ उसका कॉम्बिनेशन नेचर में मिलता है, वो अलोन नहीं मिलता है. ऑब्टेन फ्रॉम और बाय हीटिंग एयर. तो यहाँ पे देखो इसको किस तरह से केमिकल रिएक्शन है. CuS कॉपर सल्फेट सल्फाइड प्लस O2 यानी ऑक्सीजन हीट करते हैं तो CuO कॉपर ऑक्साइड अलग हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से केमिकल रिएक्शन करके सेपरेट हो जाता है. अब ये जो CuO मिला है इसको वापस से जो है क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट के साथ में जब केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें से कॉपर सेपरेट होता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में रिलीज होकर बाहर चली जाती है. एंड दिस इज इट्स केमिकल रिएक्शन. अब दूसरा यहाँ पे इन लोगों ने दिया हुआ है एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज. मतलब जो मॉडरेट है उनकी बात कर रहे हैं. द मेटल इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन, जिंक, लेड, कॉपर आर मॉडरेटली रिएक्टिव. these are usually present at the sulfide or carbonate in nature. sulfide मतलब सल्फर के साथ में and carbonate means चूने के साथ में. it is easier to obtain the metal from its oxide as compared the sulfide and carbonate. These prior to reduction the metal sulfide and carbonate must be converted into metal oxide. मतलब उनको उनके metal के oxide में convert करना पड़ता है. the sulfide or are converted into oxide by heating strongly in the presence of excess air. मतलब normal air pass से भी ज़्यादा air pass करनी पड़ती है. this process is known as the roasting, जिसको हम लोग भूनना बोलते हैं. जैसे हम लोग घर में पापड़ भूनते हैं या फिर क्या कहते हैं कढ़ाई के अंदर सूजी वगैरह रवा वगैरह डाल के भूनते हैं, इस तरह से ही इनको भी रोस्टिंग किया जाता है.
The carbonate ore are changed into oxide by heating strongly in limited air. This process is known as the calcination. उसी को calcination बोलते हैं. The chemical reaction that take place during the roasting and cancellation of zinc ore can be shown here. देखो यहाँ पे जिंक का क्लैंसिनेशन दिया हुआ. जिंक अपने प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं मिलता, वो सल्फर के साथ में केमिकल रिएक्शन फॉर्म में मिलता है. तो उसको जब ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन करवाया जाता है तो जिंक ऑक्साइड मिलता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में रिलीज होती है. वापस से जो है जो जिंक ऑक्साइड आपको मिला है, बराबर है, उसको फिर से हीट करते तो उसमें से जिंक ऑक्साइड अलग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस सेपरेट हो जाती है. The metal oxide are then reduced and corresponding metal by using the suitable reducing agents such as carbon. Carbon means koila. For example, when zinc oxide heated with carbon, carbon means कोयले के साथ में it reduce at metallic zinc. तो ZnO zinc oxide chemically react with carbon means कोयला. It remove the oxygen from it and zinc you get in the purest form and carbon monoxide you get. Okay. You are already familiar with the process of oxidation and reduction. इसके बारे में हमने पहले भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है, मैंने एक्सप्लेन करके दिया है आप लोगों को. इन द फर्स्ट चैप्टर obtaining metal from their compounds in also reduction process beside using the carbon coke or reduced metal oxide to metal something sometime displacement reaction can also be used. ये हम लोग जो है अब इसके बाद में पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ये सब चीज़ें. ओके. The highly reactive metals such as sodium, calcium, aluminum are used as reducing agent. Okay, now let's see it. अब आगे हम लोग इसको अंडरस्टैंड करते हैं reducing agent because they can displace metal at the lower reactivity form. Their compound, for example, when manganese dioxide is heated with the aluminium powder, the following reaction taken place. देखो यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है, ये थोड़ा सा जो है इसको ये ब्लर हो गया है बच्चों, लेकिन आप लोगों के बुक में ये दिया हुआ है. So you read it from there. Can you identify the substance that you getting oxidizing and reduce? यहाँ पे ये chemical reaction देख लो. MnO2 that is manganese oxide, when it is chemically reacted एल्यूमिनियम मैग्नीज जो है क्या कहते हैं लिक्विड फॉर्म में सेपरेट हो जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और फिर हीट प्रोड्यूस होती है. दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक. द मीनिंग ऑफ एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज करने वाली, ज़्यादा गर्मी पैदा करने वाली. highly exothermic. The amount of heat evolves in large that metal are produced in the molten state. In fact, reaction of the iron and ferrous oxide with aluminum is used to join railway track or the crack machine part. This reaction is known as the thermit reaction. ओके यहाँ पे केमिकल रिएक्शन देखो दे रखा है Fe2O3 chemically reacted with aluminium. It gives Fe ion in liquid form and aluminum oxide and heat is released. अब है excreting metal toward the top of activity series. बराबर है, जो बहुत ही डेलीगेटेड होते हैं, ये उन लोगों की बात यहाँ पे की हुई है. ओके, द मेटल हाई अप इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव. They cannot be obtained from their compound and heating with carbon. For example, carbon cannot reduce oxide and sodium, magnesium, calcium and aluminum. इसमें से जल्दी से कार्बन रिमूव करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बराबर है. तो इसके लिए इनको क्या करना पड़ता है? टू रिस्पेक्टिव मेटल, इट इज़ बिकॉज दिस मेटल हैव टू फॉर्म एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन देन कार्बन. दिस मेटल आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस रिडक्शन. यानी देखो यहाँ पे बाजू में आपको एक पिक्चर दिया हुआ है. यहाँ पर जो है क्या करते हैं कि उसी मेटल का जो भी केमिकल है उसको मिक्स करके एक साइड में वो मेटल को रखा जाता है और दूसरे साइड में जो है उससे रिलेटेड प्योर फॉर्म में रखा जाता है. और जब जो है इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होते हैं तो जो इम्प्योर है वो प्योर की तरफ जाता है, और जहाँ पे भी जो है जो भी उसमें से इम्प्योरिटीज़ है वो देखो नीचे की तरफ यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखा रहा है. ये जो इकट्ठा होता है उसी को हम लोग जो है एनॉइड मड बोलते हैं. ये एग्जाम में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय एनॉइड मड. तो आपको जो है ये बराबर से लर्न कर लेना है, दिमाग में रखना है. The metal are deposited in the cathode negatively charged, and whereas the chlorine liberated in the anode, and that is the reaction is given here.
Similarly, aluminium is obtained by the electrolysis reduction aluminium oxide. आप अभी आप लोगों को इतना हैवी वो नहीं दिए हुए, लेकिन आप लोग हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो वहाँ पे आपको हेरोल्ड मेथड और वो सब चीज़ों के बारे में डीप में इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि किस तरह से एल्यूमिनियम को उसके और में से सेपरेट किया जाता है. फिर है रिफाइनिंग ऑफ मेटल. द मेटल प्रोड्यूस्ड बाय द वेरियस reaction process described above are not very pure. They contain the impurities which must be removed to obtain pure metal. The most widely used method refining impure metal is electrolysis refining. So what is electrolysis refining? Many metals such as copper, zinc, nickel, silver, gold are refined electrolytically. This process is the impure metal is made in anode. जैसे आप लोग पिक्चर में देख रहे हो, वहाँ पे एनोड में इम्प्योर मेटल को जो है लटका दिया जाता है केमिकल के अंदर. एंड थिन स्ट्रिप ऑफ द प्योर मेटल इज मेड इन द कैथोड. और उसी मेटल की जो है प्योर एक स्ट्रिप को दूसरे पार्ट में लटका देते हैं कैथोड में, यानी कि नेगेटिव चार्ज में. अ सॉल्यूशन ऑफ द मेटल सॉल्ट इज यूज्ड इज इलेक्ट्रोलाइसिस. The apparatus is set up is shown in the figure given beside in 3.12. On passing the current through the electrolysis, the pure metal from the anode dissolve into electrolyte and equivalent amount of pure metal from the electrolysis is deposited on the cathode. And the soluble impurities go into the solution, whereas the insoluble impurities settle down and bottom in the anode, and it is known as the anode mud. उसी को anode mud बोलते हैं. ठीक है. अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोगों को अंडरस्टैंड करनी है, दैट इज द कोरोजन. कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी मेटल की लॉन्गेटिविटी को जो है ख़त्म करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. बराबर है. जिसको हम लोग हिंदी में जंग लगना, गुजराती में काट लगना बोलते हैं. सो हाउ यू कैन प्रिवेंट द कोरोजन, क्योंकि कोरोजन एक ऐसी समस्या है बच्चों जिससे हमको ईयरली करोड़ ऑफ रुपीज़ का इकोनॉमिक लॉस होता है. तो हाउ टू मेक इट प्रिवेंट, उसके बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे. एंड हाउ टू चेक द कोरोजन को कैसे रोका जाए उसके बारे में भी बात करेंगे. और ये चैप्टर यहाँ पर जो है आप लोगों का ख़त्म होगा इसके बाद में. So you have learned the following about the corrosion in chapter 1. Silver articles become black after some time. You know that very well when exposed in air. This is because it is react with the sulfur in the air from the coating silver sulfide. Copper react with the moist carbon and air and slowly lose its shiny, and कभी कभी उसमें green patches लग जाते हैं अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो. This green substance is the copper carbonate. Okay. Iron when exposed is the moist air for a long time occurring the coating of the brown flaky substance called rust, जिसको हम लोग जंग लगना बोलते हैं. Let us find the condition under with रस्ट रूल. अभी अगर आप ये एक्सपेरिमेंट देखते हो तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर आपको इतना ही समझाने की कोशिश की है कि आयन जब वाटर और एयर के साथ में कांटेक्ट में आता है तो जो है उसमें रस्टिंग के चांसेस होते हैं. क्योंकि देखो ये 3 टेस्ट ट्यूब के अंदर सेकंड और थर्ड में देखो एयर तो प्रेजेंस है, लेकिन एयर का कांटेक्ट वाटर के साथ नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ पे ऑयल का लेयर है. और दूसरे वाले में यहाँ पर जो है कैल्शियम कार्बोनेट चूना रखा हुआ जिसने अंदर के पूरे एयर को ऑब्जर्व कर लिया है. तो जिसकी वजह से दोनों में जो है एक वैक्यूम जैसी परिस्थिति, वैक्यूम तो नहीं बोल सकते लेकिन एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन की परिस्थिति निर्माण हुई है. एंड ड्यू टू दैट रीज़न वहाँ पे कोरोजन नहीं है, जंग नहीं है. लेकिन पहले वाले में ऐसा नहीं है, इसलिए उसमें जंग लगा है. इसको आप ज़रा डिटेल में पढ़ना, सो यू विल गेट बेटर आइडिया. मैंने आपको जो है इसको समराइज़ किया है, समझाया है मैंने. यू विल ऑब्जर्व दैट आयन नेल रस्ट इन टेस्ट ट्यूब ए बट डू नॉट रस्ट इन द टेस्ट ट्यूब बी एंड सी. मतलब यहाँ पे पहले वाले में देखो जंग लगाया, पिक्चर में देख सकते हैं, लेकिन दूसरे और तीसरे में जो है रस्टिंग नहीं है. Okay, the nails is exposed to both air and water. In the test tube B, nail is exposed only in water, and the nail is test tube C are exposed in dry air. What does this tell about the condition under such? मैंने आपको इनिशियली मैंने एक्सप्लेन करके दिया था कि क्यों ऐसा हुआ. क्योंकि रस्टिंग के लिए जो असेंशियल कंडीशन है वो एयर और मॉइस्चर दोनों का
प्रपोर्शन में ये होना है, अवेलेबल होना है। अगर वो नहीं होता है तो रस्टिंग होगी नहीं। अब इस कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, तो डेफिनेटली या तो फिर जो है उसके जो ओर्स है उसको जो है मिक्स किया जाए और जो है उनके अलॉयज़ तैयार किए जाए, तो जो है रस्ट नहीं लगेगा। या फिर उसके ऊपर जो मेटल जैसी चीज़ें जैसे आयन वगैरह है उसको कोटिंग की जाए, जैसे गैल्वेनाइजेशन है यानी कि टीन का कोटिंग की जाए, या फिर उसमें ऑयल पेंट वगैरह लगाओ, तो इट कैन बी चेक बाय रस्टिंग। इससे रस्टिंग से बचा जा सकता है। Rusting of iron can be prevented by painting, oiling, greasing, galvanizing, chrome plating, andesite and making alloy. अलॉय मतलब एक दो मेटल को मिक्स करना, जैसे क्रोमियम और आयरन और निकल को मिक्स करते हैं तो स्टील बनता है, तो स्टील में जंग लगता नहीं है। गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड टू प्रोटेक्टिंग द स्टील आयरन फ्रॉम बाय रस्टिंग by coating them with the thin layer of zinc. The galvanized article produced against the rusting, even in the zinc coating, is broken. Can be reason about this. About alloying is very good method of improving the preparation of metal. We can get the desired properties of this metal. For example, iron, most widely used metal, but it is never used in the pure state. This is because the pure iron is very soft and stretches. बराबर, इवन अगर आप उसको जोर से पटक दो तो वो टूट भी जाए, ऐसा होता है। ओके, व्हेन हॉट, बट इफ मिक्सड विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, यानी इसमें थोड़ा सा कोयला अगर आप मिक्स कर दो, सिर्फ 0.05%, इट बिकम द स्ट्रॉन्ग, वो एकदम मजबूत बन जाता है। When iron is mixed with the nickel and chromium, okay, it become the stainless steel, जिसके हम लोग आजकल बर्तन और बहुत सारी चीज़ें जो है अपने इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में, which is hard and does not rust. This is formed to mix with some of other substance, its property change. In fact, the properties of any metal can be changed if mixed with some other substance. The substance added may be metal or non-metal in alloy. Homogeneous mixture, बराबर है। homogeneous mixture मतलब जिसमें सब कुछ एक दूसरे के अंदर completely mix हो जाते हैं। 9th standard में हमने study किया है। Two or more metals or metals. It prepared the first melting and primary metal and then dissolving the other element in the identified properties in cold room temperature. Okay, if one of the metal is mercury, then alloy is known as the amalgam. The electrical conductivity and melting point of the alloy less than the purest metal, for example brass यानी पीतल, the alloy copper and zinc, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। इसी तरह से ब्रॉन्ज एंड alloy copper and tin, बराबर है। ये सब के सब जो है अपने ओरिजिनल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड इलेक्ट्रिकली वेयर कॉपर इज यूज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट सोल्डर, द alloy is lead and tin has to be melting point used to welding the electrical wire together. इतना पढ़ने के बाद में ये बाजू में एक पिक्चर आप लोग देख रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट आप लोगों में से मन भागवत वगैरह सब लोग बराबर है, जब दिल्ली गए थे तो कुतुब मीनार के पास में जो है ये आयरन पिलर आप लोगों ने देखा होगा। इट इज़ बिलीव दैट इट इज़ द टाइम फ्रॉम द विक्रमादित्य, बराबर है। इसके अंदर ब्राह्मी लिपि में इंस्क्रिप्शंस लिखा हुआ है। अब तुम जस्ट इमेजिन करो कि हमारी मेटरोलॉजी कितनी पावरफुल रही होगी कि इतने साल होने के बावजूद भी इसमें आज तक एक रस्ट नहीं लगा है। जैसा ये उस ज़माने में था ऐसा ही ये आज भी है। साइंटिस्ट लोग इसके ऊपर बहुत रिसर्च किए और उन्होंने पता लगाया कि किस तरह से जो है हमारे लोग बराबर है मेटल को मेल्ट करके, खास करके आयरन को मेल्ट करके सर्टेन प्रोपोर्शन में जब उसमें जो है कार्बन वगैरह मिक्स करते थे तो उसके रस्टिंग के चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाते थे। एंड दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर मेटोलॉजी, धातु शास्त्र का बेस्ट एग्जाम्पल है और वी हैव टू टेक प्राइड ऑफ इट। विथ दिस वी आर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर हियर, हम यहाँ पे इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, एंड आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट योर फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि अब इसके बाद इमीडिएटली फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर का बिल्कुल एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन है। जैसे ही आप इसको अंडरस्टैंड करोगे इमीडिएटली आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में आइडिया आएगा और इमीडिएटली एसिड, बेस एंड सॉल्ट, हाउ दे आर reactive with metals and non-metals, that we will try to understand. Okay, तो इसके बाद में we are going to start first chapter. Bye, see you soon all of you.